بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله. صدر اجلاس، ناظم جلسہ، معزز علماء کرام، محترم سامعین حضرات، پردہ نشین ماں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ آج آپ لوگوں نے پھلبنگا کی سرزمین میں ایک دینی پروگرام کا انعقاد کیا ہے اصلاح معاشرہ کے نام سے، کہ لوگوں کے اندر اصلاح ہو جائے، کچھ سدھار آ جائے اور لوگوں میں دینی بیداری آ جائے، لوگ اللہ رسول کے ماننے والے بن جائیں۔ یہ اصل مقصد ہے آج کے اس پروگرام کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی خمس: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ اسلام کی پہلی بنیاد شہادتین کا اقرار ہے، اللہ کو ایک ماننا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، عبادت کے لائق وہی مختار کل، نظام کائنات کا سنبھالنے والا، اسماء و صفات میں ایکتا، یہ اللہ رب العالمین کو تنے تنہا معبود اور ایکتا مان لینا ہر چیز میں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آخری رسول اور ان کا بندہ تسلیم کر لینا، یہ اسلام کی پہلی بنیاد۔ اسلام کی دوسری بنیاد وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا ہے۔ مسلمانوں خواب غفلت میں ہو، نماز بہت اہم عبادت ہے۔ اسلام میں نماز کے بغیر اسلام کا تصور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، لوگوں اس بات کو جان لو کہ تمہاری اعمال میں سے سب سے بہترین عمل وہ نماز ہے، سب سے بہترین عمل نماز ہے۔ لیکن آج اکثر مسلمانوں نے نماز کو چھوڑ دیا ہے۔ سب سے بہترین عمل نماز ہے۔ لمبی گفتگو اس میں ہو سکتی ہے لیکن اشارہ میں نے کیا۔ تیسری بنیاد زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ آپ کو نماز پڑھنا ہے، ہر حال میں، عاقل ہے، بالغ ہے، باشعور ہے، آپ کو نماز پڑھنا ہے، کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ تیسری بنیاد زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ سال بھر میں 1 مرتبہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے مال و دولت سے نوازا ہے، نصاب تک ان کا مال پہنچ رہا ہے، ان کو زکوٰۃ دینا ہے۔ اور چوتھی بنیاد حج بیت اللہ ہے۔ 5ویں بنیاد رمضان کا روزہ رکھنا ہے، جو ابھی ماہ مبارک کا مہینہ کیا ہے گزر چکا ہے۔ رمضان کے روزے مسلمانوں نے رکھ لیے اور آخرت کے لیے وہ کامیاب بھی ہو گئی، مسجدیں ویران ہو گئی، اب مسجدیں کیا ہے کہ مصلی کے لیے ترس رہی۔ یہ ہے مسلمانوں کے حالات۔ آج اسلام کی چوتھی بنیاد حج، اس پر میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، مختصر تاریخ میں آپ کو بتلاؤں حج کی۔ اللہ رب العالمین نے اس روئی زمین میں سب سے پہلے جس گھر کو عبادت کے لیے تعمیر کروایا وہ خانہ کعبہ ہے۔ فرشتوں کے ہاتھوں میں یہ عمل آیا۔ اس کے بعد پھر طوفان نوح کا زمانہ آتا ہے، طوفان نوح آتا ہے، اور پوری زمین میں کیا ہے اللہ کے جو ماننے والے نہیں تھے، شرک اور بت پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے، سب ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ بھی کیا ہے اسی میں کیا ہے مسمار ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد دور ابراہیمی آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اور ان کے بیٹے اسماعیل کو حکم دیا کہ نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کریں، اسی بنیاد پر جس بنیاد پر فرشتوں نے کیا ہے تعمیر کی تھی۔ ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ بیٹوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یہ دعا پڑھتے رہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے ابراہیم کو حکم ہوا کہ ابراہیم اب لوگوں میں اعلان کر دے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ۔ ابراہیم علیہ السلام آپ لوگوں میں اعلان کریں
हज के ताल्लुक से कि लोग पैदल ऊंटों में सवार होकर खाना कबा की तरफ आए हज करने के लिए, दूर दराज दूर इलाके से आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा यहाँ वीरान जगह है, आबादी तो नहीं है, आवाज किनको लगाऊं, मेरी आवाज कौन पहुंचाए दूर दराज दुनिया के कोने में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इब्राहिम आवाज देना तुम्हारा काम है और पूरी दुनिया तक आवाज पहुंचाना मेरा काम। बहरहाल ये हज के मुख्तसर तारीख और उसके बाद फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना क्या है, खत्म होता है। एक लंबी मुद्दत के बाद फिर बिदतें, खुराफात वगैरह ये सब दाखिल होती है। दीन इब्राहिमी लोग क्या है भूल गए और बिदत में मुब्तला हो गए और शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला हो गए। जिस काबा को तौहीद के लिए बनाया गया था, अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया था, आज उसी काबा में 360 बुत रखे हुए, 360 बुत रखे हुए हैं। सन 8 हिजरी में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह किया और वहां से बुतों को क्या है हटाया, मूर्तियों को हटाया। अजाने बिलाली हुई, मक्का फतेह हुआ और फातिहाना अंदाज में मुसलमान वहां पर दाखिल हुए। सन 9 हिजरी में हज फर्ज हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अमीर हज बनाकर मक्का मुकर्रमा भेजा कि जाओ हज करो, लोगों को हज कराओ और ये ऐलान कर दो कि आज के बाद कोई भी मुशरिक, कोई भी काफिर काबा में न आए, हज करने ना आए, कोई भी आदमी नंगा तवाफ नहीं कर सकता है। इतनी बिदतें आ चुकी थी, इतनी खुराफात आ चुकी थी दीन इब्राहिमी में कि नाम का सिर्फ दीन इब्राहिमी रह चुका था और बाकी सब लोग अपनी मनमानी कर रहे थे, यहां तक कि नंगा तवाफ किया जा रहा था। ये मुख्तसर तारीख है जो मैंने बतलाया आपको। और उसके बाद सन 10 हिजरी में अल्लाह के रसूल ने 1,24,000 या 44,000 सहाबा इकराम की जमीयत के साथ आपने क्या है आखिरी और पहला हज किया, आखिरी और पहला हज किया। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, ये हज इस्लाम की बुनियादों में से एक बुनियाद है, 5 बुनियादों में से एक बुनियाद है। किन लोगों के ऊपर क्या है ये हज फर्ज होता है वो मैं आपको क्या है मुख्तसर बतला के अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है अय्युहन्नास क़द फ़रज़ल्लाहु अलैकुम हज फहुज्जु, लोगों तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने हज को फर्ज किया है, तुम हज करो। एक आदमी उठा अल्लाह के रसूल क्या हर साल हज करना है? 3 मरतबा उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल खामोश रहे। फिर आपने जवाब दिया कि लौ कुल्तु नअम, अगर मैं हाँ कह देता तो लवजबत, वाजिब हो जाता। हर साल क्या है हज तुम्हारे ऊपर वाजिब हो जाता, तो लमस्ततअतुम, और तुम नहीं कर सकते। मालूम ये हुआ कि पूरी जिंदगी में सिर्फ 1 मरतबा हज वाजिब है, सिर्फ 1 मरतबा, वो भी सबके लिए नहीं। कुछ शर्तें हैं, कुछ शराइत हैं, जिनके अंदर ये शर्तें पाई जाएंगी उनके ऊपर ये हज वाजिब होगा। आइए मैं शर्तों को मुख्तसर आपके सामने क्या है रखता हूं। पहली शर्त ये है कि आदमी मुसलमान हो, इस्लाम लाए। कोई अगर हालत कुफ्र और शिर्क में अगर हज कर लेता है तो उनका हज कबूल नहीं होगा। बाद में वो ईमान लाया, हालत कुफ्र शिर्क में किया हुआ हज गैर मकबूल है। फिर ईमान लाने के बाद अगर क्या है ताकत रखता है हज करने की तो उनके ऊपर हज वाजिब है, उनको हज करना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ इब्न जबल को यमन की तरफ जब भेजा तो बतलाया उनको कि जाओ लोगों को बतलाओ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, पहले तुम तारुफ कराओ कि अल्लाह कौन है, रसूल कौन है, उन्हें बताओ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बहक नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, ये जाकर ऐलान करवाओ वहां पर। और जब ये मान ले तो उन्हें बताओ कि 24 घंटे में दिन और रात में तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज फर्ज की है, ये भी मान ले तो ज़कात के बारे में बताओ, ये भी मान ले हज के बारे में बताओ, ये भी मान ले तो रोजे के बारे में बताओ। मालूम ये हुआ कि इस्लाम के किसी भी अमल के लिए पहले इस्लाम लाना जरूरी है, मोमिन होना जरूरी है। दूसरी बात, दूसरी जो शर्त है वो ये है हज करने के लिए कि आदमी आकिल हो, पागल मजनून दीवाना ना हो। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस में बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 लोगों के ताल्लुक से बयान फरमाया है कि मरफूल कलम है, इनसे कलम को उठा लिया गया है। एक वो आदमी जो हालत नींद में है, जब तक बेदार ना हो जाए कलम रुका हुआ है। एक वो आदमी, एक वो बच्चा जब तक बालिग ना हो जाए कलम रुका हुआ है। और एक वो आदमी वानिल मजनून हत्ता याकिल, एक वो आदमी जो पागल है, दीवाना है, मजनून है, कलम रुका हुआ है, उनके ताल्लुक से कुछ भी नहीं लिखा जा रहा है यहां तक कि उनकी अकल दुरुस्त हो जाए। मालूम ये हुआ कि हज वाजिब उस आदमी पर होता है जो आदमी आकिल होता है, पागल और मजनून ना हो। तीसरी शर्त ये है कि आदमी क्या है बालिग हो।
बच्चा अगर हज कर लेता है, कर सकता है, नेकियां मिलेंगी, लेकिन बालिग होने के बाद अगर वो माली इस्तिताअत रखता है तो फिर उनके ऊपर हज वाजिब होता है कि वो हज करे, चूंकि हालतें उन्होंने क्या है बुलूगत से पहले हज किया है, जो बालिग होने के बाद ये किफायत नहीं करता है। चुनांचे हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अय्युमा सबिय्यिन हज्जा, जिसने क्या है, जिस बच्चे ने हज कर लिया, सुम्मा बलगल हिंसा, फिर वो बच्चा बालिग हो गया, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फअलैहि अन यहुज्ज हज्जतन उखरा, उन पर जरूरी है कि वो दोबारा हज करे। मालूम ये हुआ इस हदीस से कि बच्चा ने अगर हज कर लिया है तो उसके बाद अगर फिर जवान हो जाता है, फिर क्या है माली इस्तिताअत रखता है, तो दोबारा उनके ऊपर हज करना जरूरी है। ये चौथी शर्त ये है कि आदमी आजाद हो, गुलाम ना हो, लौंडी ना हो। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अय्युमा अब्दिन हज्जा, जिस बंदे ने, जिस लौंडी ने क्या है हज कर लिया, सुम्मा होते का फिर आजाद कर दिया गया, फअलैहि हज्जतुन उखरा, उनके ऊपर क्या है आजादी के बाद फिर हज करना जरूरी है, अगर वो माली इस्तिताअत रखते हैं, वहां पर जाने की ताकत रखते हैं। ये चौथी शर्त है हज करने के लिए। पांचवी शर्त यह है कि आदमी के अंदर इस्तिताअत हो, खाना काबा तक पहुंचने की ताकत रखता हो, माली एतबार से, जिस्मानी एतबार से, रास्ते बिल्कुल अमन वगैरह हो, ये सब क्या है चीजें इस्तिताअत में आती है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों के ऊपर क्या है हज को फर्ज किया, लोगों के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज को वाजिब किया है। किनके ऊपर? जो खाना काबा तक पहुंचने की ताकत रखते हैं। वमन कफरा, जिसने ताकत रखने के बावजूद भी इनकार कर दिया, हज नहीं कर रहा है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी दुनिया के लोगों से बेनियाज है, बेपरवाह है, लोगों की इबादत की अल्लाह रब्बुल आलमीन को जरूरत नहीं है, नमाज की भी जरूरत नहीं, रोजे की भी जरूरत नहीं, हज की भी जरूरत नहीं, ज़कात की भी जरूरत नहीं। हज तुम करोगे, नमाज तुम पढ़ोगे, फायदा तुमको होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। इसलिए अगर तुमने नमाज का इनकार किया है, ज़कात का इनकार किया है, रोजे का इनकार किया है, हज का इनकार किया है, अल्लाह गनी है, बेनियाज है, तुम्हारी इन इबादतों की अल्लाह रब्बुल आलमीन को कोई जरूरत नहीं है। वमन कफरा फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी इबादतों से बेनियाज है और मोहताज नहीं है। तुम इबादत करोगे, फायदेमंद तुम रहो। माने इस्तिताअत, अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि इस्तिताअत से क्या मतलब है, सबील से क्या मतलब है? अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं अज़्ज़ादु वर्राहिला, इस्तिताअत का मतलब यह है, ताकत का मतलब यह है कि आदमी के पास क्या है, ज्यादा राह हो, खाना काबा तक पहुंचने के लिए क्या हो, उनके पास क्या है, खाने पीने के सामान मौजूद हो, सवारी हो, या सवारी अगर नहीं है तो इसमें पैसे मौजूद हो कि किसी की सवारी में, और आज के जमाने में हवाई जहाज वगैरह से वहां तक जा सकते हो, वापस आ सकते हो वगैरह, ये सब क्या है शर्तें हैं जो मर्दों के लिए। इसी तरह से क्या है, रास्ता पुरअमन हो, हुकूमत की तरफ से कोई रुकावट ना हो और जान का कोई खतरा ना हो। ये 5 शर्तें हैं मर्दों के लिए। औरतों के लिए मजीद 2 शर्तें और हैं, वो ये है कि औरत महरम के बगैर हज में नहीं जा सकती है। चुनांचे सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न उमर रावी हदीस है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कोई भी औरत बगैर महरम के 3 दिन का सफर नहीं कर सकती है। सही मुस्लिम की हदीस है, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस है, अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं कि कोई भी औरत बगैर महरम के 2 दिन का सफर नहीं कर सकती है। एक और हदीस है सही बुखारी की, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि कोई भी औरत 1 दिन का भी सफर नहीं कर सकती है बगैर महरम के। मालूम यह हुआ कि किसी भी औरत के लिए 1 दिन का सफर करना जायज नहीं है, इल्ला कि उसके साथ कोई महरम हो, उसका सवार हो, या ऐसा आदमी उनके साथ मौजूद हो जिनसे हमेशा के लिए निकाह करना हराम है, उसको महरम कहते हैं। औरत के लिए ये मजीद इजाफी शर्त है। ये 6ठी शर्त हो गई औरत के लिए। औरत के लिए एक और शर्त है कि वो औरत हालत इद्दत में ना हो, कि जिनका शौहर इंतकाल हो चुका है उनके लिए 4 महीना 10 दिन इद्दत है। जिस औरत को तलाक पड़ चुकी है 3 महीना उनकी इद्दत है। जिस औरत को तलाक हो चुकी है या इसी तरह से हालत हमल में है और तलाक हो चुकी है तो उनकी इद्दत क्या है, वज़े हमल है। जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए तब तक क्या है उनके लिए इद्दत है। तो
इस पीरियड में जब तक कोई औरत है और उनके ऊपर क्या है मानी एतबार से, जिस्मानी एतबार से, हालात के एतबार से हज वाजिब हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि वो पीरियड में है और हालत इद्दत में है, इसलिए क्या है अब उनके ऊपर इस हालत में हज वाजिब नहीं है। तो औरतों के लिए मजीद दो शर्तें हैं कि एक उनके साथ महरम का होना और दूसरी शर्त यह है कि वो हालत इद्दत में ना हो। कुल मिलाकर औरतों के लिए 7 शर्तें हैं। इस्लाम लाना, मोमिन होना, आकिल होना, बालिग होना, आजाद होना और इसी तरह से हालत इद्दत में ना होना और उनके साथ क्या है महरम का होना। ये 7 शर्तें औरतों के लिए, 5 शर्तें मर्दों के लिए। ये सारे शराइत अगर पाए गए और इसके बावजूद अब कोई आदमी हज नहीं करता है, टाल मटोल करता है, अगले साल के लिए ताखिर करता है, उनके लिए जायज नहीं है। उलमा का फतावे इसके ताल्लुक से मौजूद है, कुरान और अहादीस इनके ताल्लुक से मौजूद है। 2 मिनट का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, तअज्जलू इलल हज, हज वाजिब हो चुका है तो जल्दी करो। फइन्न अहदकुम मा यदरी मा यअरिज़ु लहू, इसलिए तुम में से किसी को ये पता नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। इसी तरह से एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया है, मन अरादल हज, जिस आदमी ने हज का इरादा कर लिया है, माली एतबार से क्या है ताकत रखता है और सारी शर्तें उनके अंदर मौजूद है, फलयतअज्जल, उनको चाहिए कि हज जल्दी करे। इसलिए हो सकता है कि बीमार हो जाए, हो सकता है उनकी सवारी गुम हो जाए, उनका सामान खत्म हो जाए, हो सकता है कि उनके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, आफत आ जाए और उनका माल ज़ाय बर्बाद हो जाए। इस तरह से वो हज नहीं कर पाएगा। तो जब हज वाजिब हुआ उसी वक्त क्या है उनको हज कर लेना चाहिए, ताखीर करना जायज नहीं है। हमारे इलाके में कितने सारे मुसलमान हैं, कितने सारे मुसलमान हैं, लेकिन हज के ताल्लुक से क्या है सब कान में तेल लगाकर सोए हुए हैं। पता नहीं वो समझते हैं कि कितना माल हो जाएगा तब हम हज करने के लिए जाएंगे। क्या फुलबंगा की सरजमीन में कोई भी ऐसा आदमी आज तक नहीं गुजरा कि हज करने के काबिल हुआ हो, जिनके पास 3 से 4 लाख रुपए हो चुके हो, गया हज करने के लिए? नहीं गया। वो नमाज नहीं पढ़ता है, हज को क्या जाने, रोजा ही नहीं रखता है, हज को क्या जाने। क्या पूरे प्रखंड के इलाके में आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं हुआ? गिने चुने 2-4 का नाम मालूम है जिन्होंने बरहेट से एक आदमी हज कर लिया, कदमा से 1-2 ने हज कर लिया, बाकी सारे गांव क्या है सो रहे हैं। क्या पूरा जिला में कोई आदमी नहीं है जिनके ऊपर हज फर्ज हुआ? मुसलमानों में तुम्हें आगाह कर रहा हूं और तुम आगाह क्या हो गए? तुम तो सो रहे हो। यहाँ के पेड़ पौधों से कह रहा हूँ, यहाँ के चरिंद परिंदों से मैं कह रहा हूँ कि माने इस्तात जब तुम्हारे पास मौजूद हो चुकी है और क्या है ये शराइत जब तुम्हारे अंदर जब आ चुके हैं तब तुम्हारे ऊपर हज क्या है वाजिब हो चुका है। तुमको हज करना है। अगर तुमने आनाकानी की, अगर तुमने क्या है इनकार किया, सुस्ती काहली की और पैसा को बचाने के लिए तुम हज नहीं कर रहे हो, तुम्हारा ईमान खतरे में है, तुम मुसलमान के दायरे से भी निकल सकते हो, निकल जाओगे और अज़ाब कब्र में मुब्तला हो जाओगे। मैदान महशर में तुम्हारे क्या है गिरफ्त हो जाएगी कि माने इस्तात के बावजूद हालात सही थे, इसके बावजूद तुमने क्या है हज नहीं किया है। इस्लाम की 5 बुनियादों में से एक बुनियाद है, जिसने किसी भी एक बुनियाद को ढाया उसने इस्लाम को ढा दिया। मुसलमानों, शहादतैन का इकरार पहली बुनियाद है, नमाज कायम करना दूसरी बुनियाद है, रमजान के रोजे रखना, हज का ज़कात देना तीसरी बुनियाद है, हज बैतुल्लाह चौथी बुनियाद है, रमजान के रोजे रखना 5वीं बुनियाद है। ये 5 बुनियादों को तुम मजबूत करो, जिल्लत और पस्ती से उठ जाओगे, हुकूमत तुम्हारे हाथ में आएगी, जलील नहीं होगे, हुकूमत की बागडोर तुम संभालोगे। 5 बुनियादों को तुमने ढाया है, मुसल्लत दुश्मन तुम्हारे ऊपर है, कुत्ते की जिंदगी बसर कर रहे हो, इससे कहीं ज्यादा तुम्हारी जिंदगी बदतर होने वाली है। आंख तो खोलो, हालात को देखो, मुताला करो और नहीं कर पाते हो तो जानकार लोगों से, उलमा की सोहबत में उठो बैठो, दुनिया के हालात के बारे में जो जानकारी रखते हैं उनसे मालूमात करो कि तुम जा कहाँ रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस चीज को तुमने छोड़ा है, ये हालात है, क्या अपनाओगे तो फिर क्या है वो सरबलंदी तुमको मिलेगी, वो इज्जत तुमको मिलेगी, वो मकाम तुमको मिलेगा, वो हुकूमत तुमको मिलेगी जो आज से 1400 साल पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर में थी, सहाबाए किराम के दौर में जो हुकूमत थी, ताबईन के दौर में जो हुकूमत थी, खुलफाए राशिदीन के दौर में जो हुकूमत थी, वो मकाम तुमको मिलेगा। तुम आओ इस्लाम के 5 बुनियादों की तरफ मजबूती से थाम लो। आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। हज के ताल्लुक से मैंने जो चीजें बयान की है, जो शर्तें बयान की है, अपने अंदर टटोलो, हज की तैयारी तुम अभी से करो। जिनके पास भी माल है, जिनको भी अल्लाह ने नवाजा है, तुम खाना काबा
तक जाने के लिए फिक्रमंद हो जाओ, अभी से पासपोर्ट बनाने लगो, अभी से तैयारी में तुम लग जाओ, अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब से बचना चाहते हो और तुम जानते हो इसकी फजीलत क्या है। एक दो हदीस बताकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बुखारी मुस्लिम के हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि हज मबरूर का बदला लैसा लहु इल्ला जज़ाउल जन्नह, उनके लिए जन्नत के अलावा कोई बदला नहीं। जिसने हज मबरूर कर लिया डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। मालूम है हज मबरूर किसको कहते हैं? वो हज है जिसने दौराने हज कोई गुनाह का काम नहीं किया, कोई गलती नहीं कही, अकीदा तौहीद पर क्या है मजबूर, सुन्नत रसूल के मुताबिक उन्होंने हज कर लिया, ये इसको कहते हैं हज मबरूर। और इसकी पहचान ये है कि हाजी जब हज करने के बाद आए तो नेकियों की तरफ दौड़ दौड़ कर क्या है नेकियां करे, गुनाहों से मैलान हट जाए, नेकियों की तरफ उनकी रग़बत बढ़ जाए, ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमाने लगे और कोई गुनाह का काम ना करे। समझ लो इस आदमी ने हज मबरूर किया है, हज मबरूर किया है। और एक हदीस अमर इब्न आस बयान फरमाते हैं कि इस्लाम लाने का जज्बा दिल में पैदा हुआ, नबी की खिदमत में हाजिर हुआ, हाथ बढ़ाया बैत करने के लिए, हाथ खींच लिया, नबी को ताज्जुब हुआ, कहा क्यों हाथ खींचे? कहा मैं पूछना चाहता हूँ, मैं इस्लाम लाऊंगा, क्या मेरे पिछले सारे गुनाह मिटा दिए जाएंगे? कहा कि अमर तुमको मालूम नहीं कि इस्लाम अपने से पहले तमाम गुनाहों को मिटा देता है, हिजरत अपने से पहले तमाम गुनाहों को मिटा देती है और हज अपने से पहले तमाम गुनाहों को मिटा देता है। सही मुस्लिम की हदीस है, तुम हज कर ले जाओगे पिछले सारे गुनाह तुम्हारे मिट जाएंगी, डायरेक्ट तुमको जन्नत मिलेगी। और एक हदीस बुखारी मुस्लिम की अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, जिस आदमी ने हज कर लिया और उस आदमी ने कोई गुनाह का काम नहीं किया, फिस्को फजूर नहीं किया, और तो वो आदमी कैसे हो जाता है? कयौमिन वलदतहु उम्मुहु, उस आदमी की तरह हो जाता है जिस बच्चे को क्या है माँ ने आज जन्म दिया है, जिनके बदन पर कोई गुनाह नहीं, उस तरह से आदमी हो जाता है। मुसलमानों बेदार हो जाओ, इस्लाम की बुनियादों को मजबूती से थाम लो, हज बैतुल्लाह करने के लिए तुम्हारे अंदर तड़प पैदा हो जाए। अभी से जिनको माल दिया है अल्लाह ने तैयारी में लग जाओ ताकि तुम अगला साल हज कर सको। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को सही मानों में इस्लाम की जो 5 बुनियादें हैं इनके समझने की तौफीक इनायत फरमा, और ये 5 बुनियादों को अल्लाह रब्बुल आलमीन दिलो जान से लगाने, उन पर अमल पैदा हो जाने, उसे मजबूती से थाम लेने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह हम सब गुनहगार हैं तो हम सब के गुनाहों को बख्श दे, माफ कर दे। जो लोग हालत ईमान में दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।